President and Convener, IIC Institute Innovation Council. It's my pleasure and privilege to welcome you all in the Impact Lecture Series 4.0, which is sponsored by MOE, Ministry of Education Innovation Council, and which is being organized in RKDF College of Engineering, Bhopal. So we are having a very eminent personality with us, that is Mr. Raju Mathur sir. He is director and co-founder of Vijorna Technology Private Limited, Mumbai. I welcome you, sir, on behalf of RKDF College of Engineering, Bhopal, Madhya Pradesh. Good afternoon, everyone. I would like to call upon. Yeah, sir. Yeah, please. Okay. I would like to call upon Registrar, Bhabha University, Dr. Shyam Patkar sir, for welcome speech. Okay. Thank you, madam. Am I audible? Yes, sir. सबसे पहले भाभा यूनिवर्सिटी की ओर से मिस्टर राजीव माथुर जी को बहुत बहुत स्वागत, जो कि डायरेक्टर विजोना टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से हैं और इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज 4.0 में मोटिवेशनल सेशन बाय सक्सेसफुल इनोवेटर पर सर प्रकाश डालेंगे और निश्चित ही हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट और फैकल्टी को काफी एडवांटेज होगा। ये पूरा प्रोग्राम आरकेडीएफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ओर से और स्पॉन्सर्ड बाय एआईसीटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से किया जा रहा है। और मैं एक बार फिर श्री माथुर जी को बहुत बहुत स्वागत, बधाई, शुभकामनाएं देते हुए ज्यादा समय न लेते हुए हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को मोटिवेट करें। धन्यवाद। Thank you, sir. Sir, it's over to you now. So, good afternoon, everyone. This is Rajiv Mathur. I am co-founder and director of Vijorna Technologies Private Limited. That is our startup. And apart from that, my own software development company, that is Neologics Resources India Private Limited, that is also running. And I'm really blessed to be here among you all. And I would like to thank Bhabha University and RKDF officials. Specifically, I would like to thank Dr. Ashok Jhala, Professor Mukesh Pandey, Professor Amrita Pahadia, and Dr. Namish Mehta. So, without wasting much of the time, let's switch on the presentation, which I have made specifically for you. I'm sharing my screen. Ma'am, can you give me permission to share my screen? Yes, sir. Yes, sir. कर दिया, Yes, sir. Please, please. Yes. Sure. ये स्लाइड आपको विजिबल है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So for the convenience, I have divided the whole session in 4 parts. And when we are talking about the motivation, innovation, and all these things, I thought I should start with my life journey, which is the first thing in any kind of venture or my entrepreneurship. So this is the chapter 1, and that is my life. It's about me. It's briefly about me and my journey, which is like can be inspiring to so many of the people who are students of this university and this college. So again, I have divided into my childhood, my school education, then engineering. How did I get into the engineering college?
and then there was some lack of aim or visibility towards the future, or towards what is next after the engineering or after my MBA. So these kind of things were also part of my journey towards entrepreneurship. I would like to keep the medium in Hindi as well as English, so I mean it will be convenient for each and everybody to understand. So my childhood, these are some of the interesting pictures of my childhood. So you can see them, and specifically from this image, you can easily gauge that I was a typical village boy, or a typical person who has studied into villages due to job of my parents. So these are some of the glimpses of my image. And then my school, my first school, or the my schooling part. So can anybody gauge what kind of schools these were? हमारे टाइम में बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की स्कूलिंग हुआ करती थी, और प्रिमिटिव मतलब प्रिमिटिव. आपने कभी टाटपट्टी का अगर नाम सुना हो, तो I used to study in टाटपट्टी schools. So these are the टाटपट्टी schools. यहाँ पे एक स्कूल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता था, कुछ टीचर्स वगैरह बहुत ज्यादा बेसिक लेवल के, बिकॉज दे यूज्ड टू बी इन द विलेजेस. छोटे गांवों में इस तरह के कंसेप्ट थे कि भाई आप स्कूल है, आप पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव गॉन थ्रू इन माय स्कूलिंग टाइम. So this is my kind of school, that is a Tatpatti school. And then all these images are symbolic, and specifically I have chosen this just to grab your attention. So मेरे parents की transferable jobs थी, और in every 2 or 3 years we used to transfer from one city to another city. So इसका मेन कंसर्न ये है कि हम लोगों को हमेशा स्कूल बार बार चेंज करना पड़ता था, एंड वी हैड टू अडेप्ट टू सो मेनी काइंड ऑफ सिचुएशंस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज, बिकॉज 2 years in one village, 2 years in another village, 3 years in one village, that kind of thing. और उस टाइम में बच्चों का एक अटैचमेंट पेरेंट्स के साथ में रहता ही है, और इसलिए ऐसा होता है कि भाई आपको कहीं पे ऐसा नहीं कि आपको हॉस्टल में एडमिशन दिला दिया है, आपको किसी अच्छे स्कूल में, सिटी के स्कूल में आपको पढ़ने के लिए भेज दिया. So I used to be with my parents, me and my sister as well, and that kind of schooling, that kind of transfers we have seen. So and to move forward from this place, अब इसमें सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज थी सब्जेक्ट का सिलेक्शन. सो अभी तो शायद मेरे ख्याल से 11th 10th या 11th में आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, एंड दैट इज a place, a time when you are grown up, when you are fully grown up and you understand so many things कि भाई किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या करियर्स हो सकते हैं और क्या चीज हो सकती है, आप किस तरह से आगे मूव कर सकते हैं. आपको अगर आपने मैथ्स लिए तो आपने किस रीजन से लिए, एंड आफ्टर मैथ्स व्हाट आर द स्ट्रीम्स, व्हाट आर द करियर्स. इन माय टाइम वी हैड टू चूज द सब्जेक्ट इन क्लास 9th. आप समझ सकते हैं कि क्लास 9th में द किड्स आर नॉट सो मच मैच्योर, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई क्या होने वाला है. हालांकि आज के टाइम में मैंने देखा है कि भाई बच्चे पेरेंट्स से पूछते हैं कि भाई आप बताओ क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या सब्जेक्ट चूज करना है, एंड द पेरेंट्स डिसाइड कि भाई हाँ ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए. बट थिंग्स हैव चेंज्ड क्वाइट अ लॉट इन दिस टाइम. अभी के टाइम में तो ये हो गया कि भाई ठीक है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास खूब सारे रिसोर्सेज हैं देखने के लिए कि भाई आपको, अगर आपने मैथ्स लिए तो आप क्या करियर चूज कर सकते हैं, और अगर आपने कॉमर्स लिए तो आप क्या करियर चूज कर सकते हैं. हमारे टाइम में सिर्फ ऐसा होता था कि अगर आप कोविडेड स्टूडेंट हैं, अगर आप अच्छे रैंक होल्डर हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, सो इन दैट केस यू कैन चूज साइंस, और यू शुड चूज साइंस. साइंस मैथ्स और साइंस बायोलॉजी, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन. और उसके अलावा अगर कोई बहुत ही ज्यादा जिनके मार्क्स कम आते थे, सो दे यूज्ड टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स और द आर्ट्स पार्ट. अब आज के टाइम में इतना ज्यादा ये चीजें एडवांसमेंट हो गया है, और इतना ज्यादा इनमें करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको आर्ट्स के बाद में बहुत सा करियर आप बना सकते हैं. सो टू कट इट शॉर्ट, इन माय टाइम आई चोज मैथ्स, साइंस मैथ्स. एंड द रीजन क्या था उसका? रीजन ये था कि आई हैड अ डिस्कशन विद माय पेरेंट्स वर डॉक्टर, एंड दे न्यू द निटी-ग्रिटी ऑफ बीइंग अ डॉक्टर. उनको लगता था कि भाई डॉक्टर की जो जॉब है, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट. रात को 3 बजे भी कॉल आ जाती है,
किसी भी टाइम में आपको कॉल आ सकती है, आपकी इमरजेंसी सर्विस है, यू हैव टू बी ऑन द फीट, आप दोपहर में सो नहीं सकते, आपको हर टाइम में अटेंटिव रहना पड़ता है। कोई अगर सीरियस इम्प्लीकेशंस हो जाए तो डॉक्टर्स के लिए बहुत भारी काम हो जाता है। सो वी हैड अ डिस्कशन, काफी बात हुई। तो एक तो क्राइटेरिया ये चूज किया गया कि भाई यू डोंट हैव गुड ड्राइंग, तो साइंस बायोलॉजी में तो बहुत ज्यादा ड्राइंग करनी पड़ती है, तो डोंट गो फॉर साइंस बायोलॉजी। और दूसरा ये है कि ना, ठीक है यार, मैथ्स ले ले एंड यू विल बी हैविंग अ इजी लाइफ, आप बहुत सही रहेगा, क्या दिक्कत है इसमें। सो आई सेड ओके, अगर आपको लग रहा है तो मैं मैथ्स ले लेता हूँ, मेरे क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, आई आई हैव चोजन मैथ्स। और उसके बाद में फर्स्ट टेस्ट आया, आई ऑप्टेड फॉर साइंस मैथ्स। फर्स्ट टेस्ट था फिजिक्स का, 9th के फर्स्ट टेस्ट में फिजिक्स में आई कुड नॉट क्लियर द पेपर। सो दैट वाज द थिंग, मैं फेल हो गया उसमें। मैं फेल हो गया तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल एकदम सकते में आ गए कि यार ये क्या हो गया है, हुआ गया है ये। और अब इनके लिए ऐसी सिचुएशन की उन्होंने वो सोच में पड़ गई कि यार ये कर लेगा क्या, ये नहीं करेगा, इसके आगे क्या करेगा ये। तो मैंने कहा भाई अब क्या कर सकते हैं, आपने दिलाई है। होता ना कि आपकी एक अरेंज मैरिज है और आपकी एक आपने खुद ने किसी को चूज किया है, तो अरेंज मैरिज में पेरेंट्स के ऊपर होता है कि भाई आपने दिलाई है सब्जेक्ट, आप जानो और आपका काम जानो। ठीक है भाई, गाड़ी इस तरह से आगे निकल देगी। आई गॉट सीरियस टुवर्ड्स द स्टडीज, और मुझे भी बुरा लगा कि भाई मैं फर्स्ट टेस्ट में ही फेल हो गया। सो आई गॉट सीरियसली इनटू द स्टडीज एंड उसके बाद में मैंने, मेरे ख्याल से मैं शायद 12th तक मेरे ख्याल से मैं कहीं पे भी नहीं अटका, एंड आई गॉट गुड ग्रेड्स, गुड मार्क्स। और उसके बाद में मेरा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए मैंने एक सेशन ड्रॉप किया। मतलब आफ्टर 12th आई कुड नॉट गेट इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज, एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। और उस टाइम में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, जेई वगैरह सोचना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इट वाज फार फेच्ड काइंड ऑफ थिंग। सो आई डिडंट अटेम्प्ट जेई, और उस टाइम में ये कोटा के जो कोचिंग कॉलेजेस वगैरह इस तरह के कोई ऑप्शंस भी नहीं होते थे। सो यू हैड टू सेल्फ स्टडी। तो एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा सेल्फ स्टडी, तीसरा सब लोगों ने डरा के रखा हुआ था कि भाई पेपर्स आर रियली वेरी डिफिकल्ट, जेई तो क्लियर करना हर किसी की बस की बात है ही नहीं, तो भाई जेई तो अटेम्प्ट ही मत करो। ठीक है भाई, जेई अटेम्प्ट नहीं करते, फिर क्या करें, फिर करते हैं कि प्री इंजीनियरिंग करते हैं। दैट वाज पीईटी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। तो उसके लिए बैठे। फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, सेकंड टाइम में आई गॉट रियली सीरियस इनटू इट, और आई जॉइंड वन ट्यूशन इन जोधपुर व्हिच इज ए नियर बाय स्टेशन। वहां पे अच्छा टीचिंग असिस्टेंट था। आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग। कोटा से मैंने इंजीनियरिंग मेरा एडमिशन हुआ, एंड दिस इज माय कॉलेज एंड दिस इज माय ब्रांच, दिस इज माय रोल नंबर व्हिच आई स्टिल रिमेंबर। और अभी तो खैर व्हाट्सएप के टाइम में वी हैव अ वेरी गुड एंड प्रोएक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ आवर इंजीनियरिंग कॉलेज। रादर एक भी नहीं, एक से ज्यादा ग्रुप्स हैं, तो आप लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। सो आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग एंड आई सेड ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इज द बेस्ट ब्रांच व्हिच आई कुड एवर हैव। पर मेरा उस टाइम में कंप्यूटर साइंस लेने का मन था, मैं सोचता था कि कंप्यूटर साइंस चूज करूं, बट देन द थिंग वाज कि कंप्यूटर साइंस उस टाइम में नया नया ब्रांच था। सो आई डिडंट ऑप्ट फॉर दैट। आई सेड ओके, अगर मैं कंप्यूटर साइंस चूज करता हूं तो आई मे और मे नॉट गेट बुक्स और सिलेबस और व्हाटएवर थिंग्स आर देयर। और यही चीज होनी थी, यही चीज हुआ। कंप्यूटर साइंस वाले के साथ में कुछ कुछ बुरा बुरा हुआ, बट स्टिल दे वर ओके विद दैट। और उन्होंने अपने जो सब्जेक्ट्स थे सेल्फ स्टडी से अपने आप पूरे किए। मैंने भी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हम बाहर निकले। एक बीच में एक सेशन, एक साल खराब हो गया क्योंकि हमने कोई स्ट्राइक कर दी, उसकी वजह से 1 ईयर गॉट वेस्टेड। तो उसके बाद में सब वापस से उसके बाद निकले वहां से इंजीनियरिंग से, तो कोई प्लेसमेंट एजेंसीज, कोई प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती थी, एंड वी वर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द करियर्स। 2 या 3 कंपनीज इस तरह की थी जो उस टाइम में आती थी, जैसे चंबल फर्टिलाइजर्स हो गई, ठीक है, वो टॉप 5 स्टूडेंट्स को पिक करते थे। इस तरह से देयर यूज्ड टू बी वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज जो इस तरह से आगे बढ़ती थी। तो द सेम थिंग हैपेंड विद मी। सो आई गॉट वेरी मच कंफ्यूज कि भाई मुझे करना क्या है। तो आफ्टर इंजीनियरिंग डिलेमा जो है वो स्टार्ट हुआ, और मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा भाई क्या करें इसके बाद में। मेरे साथ में कुछ लोग थे, कुछ इंजीनियरिंग में थे लोग जिन्होंने दे स्टार्टेड गोइंग फॉर दीज क्लासेस। ये आपकी जो डिस्टेंट लर्निंग वाली जो क्लासेस है वो उन्होंने शुरू कर दी। डिस्टेंस लर्निंग तो नहीं होता था उस टाइम में, प्रिंटेड मटेरियल आपके पास में आता था।
So I got some good material from them, and then I got into MBA. MBA के टाइम में भी I was not very clear कि भाई MBA करने से क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग करने से क्या नहीं हुआ है, और MBA करने से क्या हो जाएगा. So I was not clear on that. So I said okay, ठीक है, चलते हैं, कोई बात नहीं. MBA में when I entered into MBA, so I really felt good कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जो आपके लाइफ से रिलेटेड हैं या जो प्रैक्टिकली कहीं पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इंजीनियरिंग में, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो यू कुड नॉट एवर गेज कि भाई ये इम्प्लीमेंट कहाँ पे होना है. सो दैट वाज वन ऑफ द मेन थिंग. अब ये हुआ कि भाई MBA कर लिया. MBA के बाद में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज वगैरह आई एंड आई गॉट इनटू अ जॉब. पर उस टाइम में भी MBA का क्रेज इतना ज्यादा नहीं था, एंड सो आई डिडंट फाइंड एनी गुड अपॉर्चुनिटी. सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग. अब इसके आगे मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, और can you see this image and can you tell me what is this? I mean, any one of you, if you are not from my era, I should say. Pager device, pager. Yeah, you are practically all right. This is a pager device. ये एक टाइम में मोबाइल से जस्ट पहले आया था, और ये टेक्नोलॉजी बहुत कम टाइम में मार्केट से आउट हो गई थी, क्योंकि एट दैट टाइम देयर वर मोबाइल फोन्स. सो आई मीन पेजर डोंट हैव एनी मार्केट. उस टाइम में पेजर के लिए फिर लेटर ऑन कुछ इस तरह के यूज केसेस देखे जहाँ पे हॉस्पिटल्स में पेजर वगैरह यूज करते थे डॉक्टर्स को इमीडिएटली कोई मैसेज देने के लिए, एंड फॉर ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. दिस वाज अ वेरी लो पेइंग जॉब व्हिच आई गॉट एट दैट टाइम. आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग एंड आफ्टर डूइंग MBA, आई कुड नॉट गेट अ गुड जॉब. और वही क्लैरिटी और वही सब कुछ चीजें कि आपको पता ही नहीं कि यार ये हो क्या रहा है. Then I said, okay, कोई बात नहीं, चल रहा है, चलने दो. I did this job for around 2.5 years. और 2.5 years के बाद में मुझे हमारे एक बॉस थे, तेजिंदर सरदार जी थे. So तेजिंदर सर was quite intelligent, और वो हमारे सीनियर थे MBA में एक टाइम में. तो उन्होंने कहा कि यार ये इसमें है ना कुछ मार्केट में जो गैप्स है ना, आपने को ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहिए कि जो मार्केट में गैप्स को फिल कर सके. हमने कहा सर ऐसा क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है. तो दैट वाज नॉट रिलेटेड टू दिस पेजर थिंग. ही सेड ही गॉट अ बिजनेस आइडिया. उन्होंने कहा कि यार एक साइबर कैफे ओपन कर लो तुम, मजा आ जाएगा. सर साइबर कैफे, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं. हमने थोड़ा सा और उसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद में हम लोग जो है साइबर कैफे वाला लाइन में आ गए. दैट वाज माय फर्स्ट एंटरप्रेन्योरियल वेंचर विद द नेम ऑफ नेटएपीज. सो इट वाज अ साइबर कैफे, और उस टाइम में इंसिडेंटली सिटी में साइबर कैफेज थे भी नहीं. सो चल निकली अपनी दुकानदारी, और आई सेड ओके यार, इट्स गोइंग वेल. और इसके टाइम में भी वी डिडंट हैव एनी क्लैरिटी कि भाई आगे कितने टाइम ये सस्टेन करेगा, आपको कितने टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, कोई और ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. पर वो टेन्योर अच्छा चल रहा था, वी वर अर्निंग वेल. तो आई सेड ओके, ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं है. और ये चलता गया. और ये चलने के बाद में उसके बाद में साहब ये हुआ कि भाई एक टाइम में साइबर कैफे का टाइम खत्म हो गया. बट मीनवाइल वी स्टार्टेड दिस सॉफ्टवेयर कंपनी विद द नेम ऑफ नेटएपीज ओनली, एंड we were not much into the technology part, because I was from electronics and telecommunication. One of my partner was MCM, and one was again an electronics engineer. तो हम तीनों के पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं. पर क्या है कि ठीक है, व्हेन यू हैव जील टू लर्न टू अर्न, तो उसके बाद में आपको लगता है कि भी ठीक है, हाँ आप को स्टडी करनी चाहिए, आपको उस पढ़ाई करनी चाहिए. एंड एट दैट टाइम आई शुड से माय रियल स्टडीज बिगन. I was very much keen into marketing. One of my partner was very much keen into the designing part. So he said, okay, ये जिम्मा मैं संभाल लेता हूँ और मार्केट वाला जिम्मा आप देख लो. I said, okay, ठीक है, चलते हैं. तो हमने साइबर कैफे के साथ साथ में अपना ये वेंचर शुरू किया, जहाँ पे अपने वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन करना शुरू किया. और दैट वाज प्योर HTML काइंड ऑफ थिंग. और उसमें हमने शुरू में अच्छा हमने मार्केट चयन किया. अगेन वही बात की, इसमें आगे आपको पता नहीं कि आगे आपको क्या किस तरह से आगे आपको स्टेप रखना है. तो ये चलता गया, और बाद में हमने एक इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लिया. देन वी, दैट इज नियोलॉजिक्स रिसोर्सेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. दैट वाज माय सेकंड वेंचर यू कैन से, और दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. और उसके बाद में हम लोगों ने, ठीक है, उसमें कई और चीजें ऐड करते रहे. विद द टेक्नोलॉजी, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, वी एडेड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
and these kind of things. Some of the things were also there at that time. कुछ और चीजें नई नई आ रही थी, कुछ आती जा रही थी, तो वो सब हम उसमें ऐड करते गए, और वो सब ऐड करते गए, तो वी वर रेडी, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर सो मेनी ऑफ द थिंग्स. और उस टाइम में इंटरनेट भी आपके पास में इतना अवेलेबल था कि आप कहीं पे भी प्रॉपरली स्टडी करके और आप कुछ ना कुछ चीजें निकाल सकते हैं. ठीक है, और ये चलता गया, ये अभी भी चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. एंड टचवुड वी आर डूइंग वेल इनटू दिस Neologics Resources Private Limited. We have a certain group of developers. और इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे चलते हैं. तो सेकंड पार्ट जो है वो पार्ट था वीजर्नो. वीजर्नो का कंसेप्ट कहाँ से आया, वीजर्नो किस तरह से आया मार्केट में, या किस तरह से किसी के दिमाग में आया. सो दैट इज ऑल्सो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैड टू टेल. और ये पार्ट जो है ये आया कि भाई सबसे पहले मैं बताता हूँ वीजर्नो क्या है. सो वीजर्नो is a powerful tool to replace OB-VANs. Straight forward. आप OB-VANs की नीड को हटा के और वहां पे आप वीजर्नो को प्लेस कर रहे हो फॉर द सेम थिंग, टू गेट द वीडियोस फ्रॉम द मार्केट. OB-VANs लगती है, आपने देखा होगा, अगर कहीं पॉलिटिकल रैलीज वगैरह होती है, यहाँ पे आपने सब जगह देखा होगा, OB-VANs लगती है. आपके PM ऑफिस के बाद में परमानेंट एक OB-VAN लगी हुई है. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे परमानेंट OB-VANs प्लेस की हुई है. दे आर रियली वेरी वेरी कॉस्टली. आपका एक फिक्स्ड वो है स्ट्रक्चर है कि आपको उतना तो खर्चा करना ही करना है. एंड फॉर DD एंड ऑल दीज थिंग्स इट इज क्वाइट ओके कि भैया ठीक है हम OB-VANs इंक्रीज कर सकते हैं. बट फॉर दीज अदर चैनल्स, अदर न्यू चैनल्स, इट इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट डे बाई डे. अभी आपने कोविड टाइम देखा, 2 साल में आपने कोविड टाइम देखा, आपको पता अगर हो या नहीं हो, ये खूब सारे न्यूज चैनल्स बंद हो गए, खूब सारे आपके रिपोर्टर्स जो हैं वो जॉबलेस हो गए. सो दे वर आर टारगेट मार्केट फॉर दिस वीजर्नो. तो वीजर्नो में यहाँ तो मैंने आपको एक स्टार्ट बता दिया कि आप ब्रीफली ये क्या है. मैं आपको इस पे एक पूरा पिच डेक जो है वो डिटेल आपको एक पिच डेक दिखाता हूँ. सो देन लेट्स अगेन मूव टू द वीजर्नो स्टार्टिंग. सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड. ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया ऐसे आया कि एक बार मैं जर्नी कर रहा था जसोवाल के लिए टू एडमिट माय यंगर सन इन अ टेनिस एकेडमी. और वहां पे मैंने विजिट कर रहा था, तो मैं दिल्ली गया. दिल्ली से मैंने एक बस ली और बस लेके और मैं जा रहा था. उसके रास्ते में मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, हु इज अगेन वन ऑफ द को-फाउंडर इन दिस कंपनी. ही इज मिस्टर अनिल माथुर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट सिंगापुर. ही यूज्ड टू बी माय क्लासमेट इंजीनियरिंग टाइम में. यूज्ड टू बी माय क्लासमेट. तो उसने फोन किया कि भाई कहाँ पे है. मैंने कहा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जसोवाल जा रहा हूँ, लुधियाना, तो यहाँ पे जाकर बच्चे को टेनिस में एडमिट करवाना है. तो कहते यार मेरे पास एक आइडिया है, तू फ्री है क्या तू? मैंने कहा मैं तो बस में बैठा हूँ, फ्री हूँ, सुन लेता हूँ. तो उसने मेरे को आइडिया बताया कि भाई ऐसे ऐसे वीजर्नो है और ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया है और हम क्या इस पे कोई प्रोटोटाइप बना सकते हैं क्या? पता ऐसा लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं. आई सेड ओके, मैं एक बार थोड़ा सा वापस आता हूँ, उसके बाद में लेट्स स्टार्ट द थिंग्स. सो आई वाज रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग कि भाई ठीक है चलो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. सो देन आई केम बैक एंड वो एक डेवलपर को मैंने काम दिया कि भाई हमको क्या करना है, मार्केट से ऐप के थ्रू एक वीडियो फैच करना है जो हमारे एक सॉफ्टवेयर, एक डैशबोर्ड पे आ जाए जहां पे कोई भी उसको देख सकता है. दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट. उसने कहा कि भाई ये बेसिक कंसेप्ट है और इसके बाद में इस पे आगे और इवॉल्व करते हैं, आगे और देखते हैं कि अपने को और किस किस तरह से आगे प्रोग्रेस करनी है. ठीक है चलो कोई बात नहीं. हमने स्टार्ट किया तो हमने वहां पे एक सक्सेसफुली एक पूरा एक साइकिल जो है वो कंप्लीट कर ली कि जहां पे हम लोगों ने एक ऐप के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको सेंड किया, सेंड करते ही यहाँ पे आ. ठीक है, एट दैट टाइम व्हाट्सएप वाज नॉट देयर और इन वेरी मच प्रिमिटिव स्टेज. तो मैंने उससे पूछा, भाई मैंने कहा व्हाट्सएप से वीडियो आ सकता है तो हमको क्या जरूरत है इसकी. तो ई साइड की आई हैव सो मेनी थिंग्स इन माय माइंड और फिर अपन जब बैठ के डिस्कस करेंगे तो कुछ कुछ और नई नई चीजें आती रहेंगी. ऐसे ओके ठीक है चलने दो. सो ये मैंने आपको हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ये जर्नी मैंने आपको बताई. तो किस तरह से ये स्टार्ट हुआ और किस तरह से हम लोग इसके लिए रेडी थे कि हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं. तो इसमें मैं आपको जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अगर हम सोचें कि भाई ये चीज कैसे स्टार्ट हुई और मेरे पास में कैसे आई. द पर्सन वाज सिटिंग इन सिंगापुर and he was not so very close friend of mine, but still उसने मेरे को कहा कि भाई ये करते हैं.
तो मैंने फिर इसके बाद में एक आफ्टर थॉट दिया कि भी हाउ what are our takeaways from this particular journey, इससे हम क्या सोच सकते हैं। तो एक तो ये चीज थी कि भी उसके लिए आई वाज टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल। उसने कहा कि भी ठीक है यार, ये बंदा है, ये कर सकता है, दे आर रनिंग ए सॉफ्टवेयर कंपनी सो दे कैन डू इट। ठीक है। सेकंड चीज थी अवेलेबिलिटी, आई वाज अवेलेबल। एंड थर्ड थिंग वाज रेडीनेस, आई वाज रेडी फॉर इट। सो ये हमारे इस पर्टिकुलर अगर छोटा सा इंसिडेंस देखें कि इसके टेकअवेज क्या है, तो ये हमारे 3 टेकअवेज जो हैं वो हम इससे गेज कर सकते हैं कि भाई ये चीजें इससे निकल सकती हैं। ठीक है। एंड देन देयर इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट प्रोटोटाइप और एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एनी स्टार्टअप जर्नी। सो फर्स्ट इज आइडिया, सेकंड इज प्रोटोटाइपिंग एंड थर्ड इज रीइटरेशंस। पहले आप एक आइडिया जनरेट करते हैं, उस पर आप एक कुछ थोड़ा सा वर्क करके देखते हैं, फिर आप एक उस पर प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उस पर कई रीइटरेशंस होते रहते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए। एंड आई मस्ट टेल यू कि आज तक भी उसमें हम कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड ऑन करते जा रहे हैं बेस्ड ऑन द मार्केट फीडबैक और प्रॉपर वैलिड पॉइंट्स। तो ये हम लोग अभी भी कर रहे हैं, ये चीज चल रही है। तो हमने ये जैसे मार्च 10th 1876 को एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था कि भाई जो आपका ग्राहम बेल ने अपने असिस्टेंट को फोन किया कि भाई एक बार इधर आओ, मुझको तो तुमसे कुछ काम है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग वी हैड डन विद दैट प्रोटोटाइप। तो हम भी मतलब वी वर रियली दैट काइंड ऑफ हैप्पी कि जहां पे हमको लगा कि यार ये तो सक्सेसफुल हो गया, चल गया ये तो, मतलब नॉट अवेयर मच कि भी हाँ हो सकता है ऐसा, पर हमने ये कर लिया। अब आइडिया वैलिडेशन की बात आई तो वी वर हैविंग अ वेरी क्लोज फ्रेंड हु रन्स अ न्यूज़पेपर विद द नेम ऑफ दैनिक नवज्योति इन जयपुर। तो उसके पास में हम गए, उसके बाद हमने उसको जाके कहा कि भाई देख ऐसा है, हमने ये एक प्रोटोटाइप बनाया है, तो यहाँ से हम इस तरह से वीडियो फैच कर सकते हैं और कंसेप्ट ये है कि जहां जहां पे तुम्हारी अप्रोच नहीं है वहां से हम तुमको वीडियो लाके दे देंगे। तो उसने कहा कैसे करोगे, तो हमने बताया कि भाई ऐसे ही है हमारा कंसेप्ट है। And हमने उसको कहा कि भाई डू यू विश टू बी ए पार्ट ऑफ इट। तो उस टाइम में उसने कहा कि हाँ मैं सोचता हूँ। ही वॉज नॉट मच कन्विंस्ड कि भाई इस तरह से ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है क्या। देर आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि सप्लायर साइड में विच इज वीजर्नो ऐप, उस साइड में आपको जो लोग मिलेंगे वो कितने कंसिस्टेंट मिलेंगे ये आप श्योर नहीं होगी भी आपको मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। दूसरा ये कि हु आर द बायर्स, व्हाट्स द मार्केट, मार्केट इसके लिए अवेलेबल है या नहीं है, मार्केट इसको अडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा। सो दोस काइंड ऑफ थिंग वी सेड ओके, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिजिटल जो चैनल्स हैं, जो आपके ये आपके ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, हमने कहा इनका जो वॉइड है वी वांट टू फिल दैट वॉइड, और वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ही वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड, सेड ओके तुम कंटिन्यू करो। हमने कहा ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं, और हम कन्विंस्ड है इस चीज, एंड वी वर वेरी कन्विंस्ड कि भी हम लोगों ने अपना अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो भी निकाल के रखा हुआ था कि हाँ हम लोग इस तरह से करने वाले हैं इसको। ठीक है। अब ये आइडिया वैलिडेशन जो है ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपका जो आइडिया है उसको मार्केट कितना उसके लिए एडेप्टिव है, आपका मार्केट जो है उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। आपके दिमाग में आइडिया है, अच्छी बात है, आपने उसको नोट डाउन किया, आपने उसको जनरेट कर लिया, पर उसको मार्केट कितना अडॉप्ट करता है ये एक चीज है। ये मेक और ब्रेक एक्टिविटी है, और ये अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं फ्रॉम द स्टेप 1, सो इट कैन मेक और ब्रेक योर प्रोडक्ट। आपको हो सकता है कि अपना प्रोडक्ट पूरी तरह से चेंज करना पड़े। लाइक हमारा इनिशियल जो आइडिया था वो ये था कि हम कोई भी एक मीडिया चैनल जो है वो एक पिन ड्रॉप करेगा एक पर्टिकुलर एरिया में, जहां पे अगर जो भी वीज जर्नल्स अवेलेबल होंगे उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और वो अगर एक वीडियो सेंड करते हैं तो वो उस मीडिया कंपनी के पास में आ जाएगा। देन वी वेंट टू एबीपी न्यूज, दे सेड नहीं यार इसमें ये तो ठीक है, लेकिन इसमें ना कुछ चीज और होनी चाहिए। सेड व्हाट, तो यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भाई ऑटोमेटिकली वीडियोस आते रहे और जो है हमको परचेज करना हो परचेज कर लें। ये हमने एक दो लोगों से और सुना, हमसे तो वी सेड यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं, इसको भी हम ले लेते हैं कि भाई इसको भी अपने प्रोडक्ट का एक पार्ट बना लेंगे, अभी नहीं तो बाद में या जैसा भी कर सकते हैं। सो दिस इज वैलिडेशन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। अब मैं अगर थर्ड पार्ट पे मूव करूं तो आई वुड लाइक टू शो यू द कंप्लीट डेक व्हिच वी हैव मेड फॉर वीजर्नो, एंड वो उसमें काफी आपको, now this second screen is visible, this वीजर्नो screens. I hope this is. So what is वीजर्नो? If this is a pitch deck which we are using to communicate with any of the investor or anybody in the market, तो ये चीज है कि what is वीजर्नो?
So vJourno is basically democratizing digital video for unlocking value. तो अगर आपको ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो डेमोक्रेटाइजिंग का मतलब है कि आप इसको हर किसी को एक पावर दे रहे हैं. जैसे आपके एक टाइम में आपको याद होगा कि अंबानी ने फोन निकाला कि हर आदमी के पास में फोन होना चाहिए. सो ही गेव 500 रुपीज फोन. अब यहाँ पे ये है कि सबके पास मोबाइल फोन अवेलेबल है, सबके पास टेक्नोलॉजी नेटवर्क अच्छा अवेलेबल है. सो वी आर डेमोक्रेटाइजिंग देम to earn money from this particular video which they are going to shoot through vJourno app. So this is what is our concept, simple, in simple terms. और इसके साथ में हमने कुछ टेक्नोलॉजी ऐड की. इसके साथ में टेक्नोलॉजी इस तरह से ऐड की कि भाई ये जो वीडियो आ रहा है ये फेक नहीं होना चाहिए. आज के टाइम में आपने बहुत देखा होगा अमर उजाला या जनसत्ता या कई तरह के न्यूज़पेपर्स जो हैं, जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने फेक अलर्ट के नाम से अपनी सर्विसेज शुरू की. क्योंकि इन दीज टाइम्स यू आर गेटिंग सो मेनी ऑफ द फेक वीडियोस, सो पीपल आर फेड अप कि यार ये सही है कि नहीं. और होता यूं है जनरली कि आपके साथ कोई वीडियो आया व्हाट्सएप पे लगा, आपको लगा कि यार ठीक है, कोई अगर सही सोर्स के थ्रू आ रहा है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हो. ये मैंने देखा है कि पर्सनली मेरे जो रिटायर्ड फैमिली पर्सन हैं उनकी हैबिट्स मैंने देखी कि जनरली उसको फॉरवर्ड कर देते हैं. अब इस चीज के लिए बहुत कुछ चल रहा है, और हमारा vJourno ऐप जो है या vJourno इकोसिस्टम जो है वो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, कि जहां पे हम फेक वीडियोस को साइड में हटाना चाहते हैं और एकदम क्रेडिबल वीडियोस जो है वो यूजर्स को या रादर मीडिया हाउसेस को देना चाहते हैं. तो ये इसके थोड़ा सा ब्रीफ ये है, जैसे मैंने बताया कि दिस वाज फाउंडेड एंड लेड बाय 4 टेक्नोक्रेट्स. सो मी, माय पार्टनर नीरज, एंड देन देयर वर अनिल माथुर who had the original concept. और उसके अलावा जो है वी हैव प्रणव भार्गव हु इज सीईओ ऑफ द कंपनी, और जो ये सारे मार्केटिंग ऑपरेशंस वगैरह सारा जो लाइजन वगैरह ये सब काम देखते हैं. सो 3 of us were from the same engineering college. This is the power of network. This is the power of network, कि जहाँ पे आप ये कहते हैं कि भी ठीक है, अगर आरकेडीएफ से मेरे साथ वाला कोई पढ़ा हुआ बंदा अगर मेरे को 30 साल बाद मिलता है, 20 साल बाद मिलता है, तो दे आर गोइंग टू हेल्प मी एनी हाउ. और ये आप अगर जैसे स्टूडेंट्स हैं तो आपको सबको पता होगा कि ये पावर जो है वो सबसे बड़ी है. और आपके जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं आपको आगे की जर्नी तक में आपको हेल्प करने वाले हैं, आपके साथ में जाने वाले. ठीक है. अब व्हाट इज आवर कोर ऑफरिंग? दैट इज टेक प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल वीडियो एग्रीगेशन, एंड वी आर सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम व्हिच आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू. And this is driven by gig economy. Gig economy means कि आपने सुना होगा ये वर्ड gig economy. ये वर्ड ये कहता है कि भी आपके पास में फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं, कोई लोग अपने घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं, और वो एक बहुत बड़ा मार्केट है या बहुत बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, which we also use in our software development company. हम भी यूज करते हैं और बहुत सारे लोग भी यूज करते होंगे फ्रीलांसर, एंड देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स. और गिग इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं जो कि अवेलेबल हैं आपको कुछ ना कुछ काम डिलीवर करने के लिए, कुछ ना कुछ काम करके देने के लिए. सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ आवर मोबाइल ऐप, vJourno मोबाइल ऐप, which will be there in the hands of the suppliers. This market is so big that 88 billion minutes per month opportunity is there in the market. और ये सब डेटा जो है ये सब ऑथेंटिक डेटा है which is there on so many platforms. और ये आपको ये पर्टिकुलर स्लाइड जो है ये आपको ये शो कर रही है कि 2021 तक हम लोग कितना बड़ा मार्केट हो जाएंगे. ये इंडिया का डेटा है. सो इंडिया इज likely to be home to a billion digital users by 2028. अर्लियर प्रोजेक्शन था 2030 के लिए, उसके कंपैरिजन 2028 में हम लोग जो है एक हब बन जाएंगे डिजिटल वीडियो. या स्लाइड चेंज नहीं हो रही है सर. स्लाइड चेंज नहीं हो रही है? यस सर. अभी आप डिजिटल मीडिया वाली स्लाइड देख पा रहे हैं? नहीं आई सर, स्लाइड नहीं आई. अभी चैप्टर 3 चल रही है सर. चैप्टर 3 चल रहा सर अभी. अच्छा, मैं आपको इज इट विजिबल नाउ? अभी विजिबल है? नहीं है सर. नो सर.
मेल ठीक है, मेरे को दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। now it is visible. Now it is visible. Okay. Yes. So this we have seen vJourno. What is vJourno? vJourno is a very credible source of video जिसमें हमने काफी टेक्नोलॉजी यूज की है। जो टेक है वो आपको ऑथेंटिक बनाता है। वो आपका एक हम लोग जो आपका लेट लॉन्ग जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेस का पिक करते हैं। सो दैट मीन्स वी आर मेकिंग इट क्रेडिबल कि भाई हाँ ये वीडियो एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे बताया वहीं पे शूट हुआ है। ठीक है, और इसके साथ में हम लोग कुछ एआई वगैरह लेटर ऑन स्टेज में इंप्लीमेंट करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग कुछ वीडियोस को ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट करना चाहते हैं। से सपोज देयर इज अ वायलेंस वीडियो, वी वांट टू रिमूव इट फ्रॉम द सिस्टम। तो वो सब कुछ चीजें ऑटोमेशन जो है, ये सब कुछ चीजें जो है सेकंड पार्ट में है। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई मैं और मेरे साथ में जो 3 लोग हैं, आउट ऑफ देम 2 आर core to the technology. They are engineers from the same batch from which I am. ठीक है, और इसके बाद में गिग इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बता ही दिया। ये मैं आपको डेटा दिखा रहा था कि अकॉर्डिंग टू वेरी ऑथेंटिक सोर्स वी हैव 88 बिलियन मिनट्स पर मंथ अपॉर्चुनिटी। मैंने एक हम लोगों ने किसी के लिए डिजिटल मीडिया का कुछ कैंपेन किया था, डिजिटल मार्केटिंग का। तो उस टाइम में हमने सोचा कि भाई इस बंदे का जो कोई पॉलिटिकल फिगर था उसके लिए हमने कोई डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन किया। सो वी आर बिट कंफ्यूज कि भाई गांवों में किस तरह से क्या रीच रहेगी, क्या होगा, मतलब लोग अडेप्टिव है कि नहीं है, लोगों के पास सिस्टम है कि नहीं है। पर गांवों में इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, आपके वीडियो कंटेंट स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा गांवों में यूज किया जा रहा है। दैट इज बीइंग यूज्ड इन द रिमोट विलेजेस यू कैन इवन थिंक ऑफ। आपने अगर इंस्टाग्राम वगैरह अगर आप रेगुलर चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह रेगुलर चेक करते हैं, तो लोकल लैंग्वेज में भी आपके उसमें कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। 2021 तक वी विल बी ए 5 बिलियन इकोनॉमी एंड दैट इज डिजिटल मीडिया इज $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी। इसके साथ में मैं आपको बता रहा था कि 2030 तक का प्रोजेक्शन था, अगर हम इतने नंबर ऑफ यूजर्स कर सकते हैं 2030 तक, बट हमने उसको अचीव कर लेंगे 2028 में। सो दैट वेज in that proportion the market is increasing. अब vJourno के कुछ जो प्रॉब्लम्स जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो अभी जो एग्जिस्टिंग, जैसे हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट मार्केट है, दैट इज अ मीडिया हाउस लाइक दीज न्यू चैनल्स, जी न्यूज, एबीपी न्यूज एंड ऑल दीज न्यू चैनल्स। तो उनके लिए हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं? उनके लिए हम लोग एक सबसे पहली चीज है हाई फिक्स कॉस्ट, वो अभी ऑलरेडी ओबीवेंस के लिए पे कर रहे हैं, पर हम कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है। आपके पास में वीडियोस आ रहे हैं और अगर आपको जो वीडियो चूज करना है वो आपने चूज किया और आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलर वीडियो के लिए पे करना। ठीक है, दूसरा ये है कि आप देखते होंगे टीवी में कई बार आपके पास रिसाइकल्ड कंटेंट आता है, एक ही कंटेंट को आप कहीं अलग अलग वीडियोस में तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह से यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे फ्रेश कंटेंट की आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, और फ्रेश कंटेंट इसलिए कि भाई वो डायरेक्टली शूट हुआ है, आपने इमीडिएटली आपने एक सर्विस रिक्वेस्ट भेजी और वहां पे आपको vJourno जो है वो एक कंटेंट भेज रहा है, वो डायरेक्टली आपके पास में आ रहा है। तीसरी चीज ये कि ये हर वीडियो यूनिक है। अगर आपने कोई एक वीडियो देखा, आपके पास एक वीडियो आया और वो वीडियो है, उसके पास में उसके ऊपर में vJourno का एक वाटर मार्क रहेगा, जहां पे कोई भी उसको जब तक उसको परचेज नहीं कर ले तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बड़ा सा वाटर मार्क है, दैट इज क्वाइट इरिटेटिंग। और उसके साथ में लेट लॉन्ग जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन का, दैट विल बी एम्बेडेड ऑन द वीडियो इटसेल्फ। ठीक है, तो ये इसको यूनिक बनाता है, ऑथेंटिक बनाता है। यूनिक से मेरा एक और सिंपल सा मतलब है, once the video has been uploaded from a vJourno mobile app, it does not remain in the system of that particular person. उस बंदे के पास में वो रहता नहीं है। वो एक बार गया मतलब गया, सबमिट हो गया मतलब सबमिट हो गया। अब उसके पास में कोई उसकी दूसरी कॉपी नहीं है। तो आपके पास जो कंटेंट आ रहा है वो बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल ही यूनिक है। वो एक अलग चीज है कि वहां पे अगर कोई और दूसरा बंदा है वहां पे तो वो शूट कर सकता है। क्रेडिबिलिटी के जो इश्यूज हैं उनको भी हम लोग कैटर कर रहे हैं, और एक पुअर क्वालिटी का जो है इसका इशू हम लोग इस तरह से कैटर कर रहे हैं कि हम एक जैसे किसी ने कोई वीडियो शूट करता है वो ऑटोमेटिकली उसका जो इंक्लिनेशन है वो चेंज होकर हॉरिजॉन्टल हो जाता है, नंबर एक चीज। और दूसरी बात ये कि एक मिनिमम क्वालिटी का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें कि हमने हैंडशेक के लिए, अगर आपने गलती से वीडियो शूट करते हुए हाथ मूव कर दिया तो वो आपको वीडियो वहीं पे आपको रुक जाएगा, आपको दोबारा से उसको शूट करना पड़ेगा।
आपको 2 या 3 बार वार्निंग्स मिलती है कि भाई ये जो चीज है कि भाई आपका जो हाथ है वो मूव कर रहा है या आप हाथ को स्टेबल रखें। लेटर ऑन हम लोग इसमें गिम्बल के जो फीचर्स हैं वो भी इसमें हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो हम मीट आउट कर रहे हैं। ये आपका वीजेनो मोबाइल ऐप है और ये आपका डैशबोर्ड है जहां पे आपके पास में ये वीडियोज आएंगी। आपने यहाँ से शूट किया, वीडियो सेंड किया, ये जो भी मीडिया हाउसेज जिनके पास में पैनल है, जिन्होंने परचेज कर रखा है या रादर जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनके पास में डायरेक्टली रियल टाइम में ये वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। ये बड़ा इंट्यूटिव मॉडल है। ये वीजेनो वाला पार्ट है, दैट इज द सप्लाई पार्ट, एंड दिस इज द कस्टमर पार्ट। और इनके बीच में, दोनों के बीच में टू वे रिलेशनशिप है। एक तो ये कि अगर मैं मीडिया हाउस हूँ और मुझे एक फ्रेश वीडियो कंटेंट चाहिए, तो मैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे मैं बॉम्बे में बैठा हूँ, अब मेरे को लग रहा है कि भी राजस्थान की इस पर्टिकुलर एरिया में बाड़मेर में कुछ चीज हो रही है, मुझे लग रहा है कि वहां से कुछ फ्रेश कंटेंट कैसे मिल सकता है। सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर सॉल्विंग। आपने वहां पे गए, आपने मैप पे, ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने मैप पे पिन ड्रॉप किया, ड्रॉप कर दिया, आपको जितने वहां पे वी जर्नल्स अवेलेबल हैं जो ऑन बोर्ड है वो आपको दिख जाएंगे। और आपने जैसे ही रिक्वेस्ट भेजी वो सभी के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, और वो जो रिक्वेस्ट सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा, फर्स्ट 3 वी जर्नल्स विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू शूट द वीडियो एंड सेंड इट टू यू। उन 3 में से भी कस्टमर चूज कर सकता है कि बेस्ट मुझे ये लग रहा है, मैं ये चूज करूंगा। आपने जो वीडियो परचेज किया है उसी के लिए आपको पे करना है, उसके अलावा आपको दूसरे वीडियोस के लिए पे नहीं करना है। आई होप आई हैव clarified most of the things, but if there are any questions, so we can take them in the end, लास्ट में ले सकते हैं उनको, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये हमने एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए एप्लीकेशन बनाई है। अगर इसमें कुछ इस तरह के फीचर्स दिए हैं कि सपोज यू आर एट सम एक्स प्लेस और वहां पे नेटवर्क इतना प्रॉपर नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि भी नेटवर्क प्रॉपर नहीं है और आपका कनेक्शन कट हो गया, आपने वीडियो शूट कर लिया, आपको लग रहा है वीडियो चला जाएगा, तो उसके लिए हमने प्रोविजंस किए हुए हैं। नेटवर्क जैसे ही आप नेटवर्क वाले एरिया में आएंगे, आते ही वीडियो वहीं से वापस से स्टार्ट हो जाएगा अपलोड होना, और एक बार अपलोड हो गया तो आपको वहां पे वो दिखा देगा कि भाई ये वीडियो दिस हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। तो वो आपके पैनल में दिख जाएगा कि आपने इतने इतने वीडियोस अपलोड किए हैं और ये सोल्ड है, ये अनसोल्ड है। अनसोल्ड के भी रीजंस आपको वहां पे दिख जाएंगे। तो ये हमने पूरा एक ओवरऑल इकोसिस्टम डिजाइन किया है जहां पे वीडियो फैच करना, डिजिटल वीडियो, डिजिटल कंटेंट फैच करना इजी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई आपके हर एक वीडियो की जो कॉपी है वो यूनिक है। It does not stay in the mobile app or anywhere in any RAM or any temporary memory of the system. ठीक है, फिर हम आपके जो कंप्लायंस है वो फुलफिल कर रहे हैं। आपका जो वी जर्नो है, आपका जो ऑन बोर्ड वी जर्नो है जो सिस्टम पे है, उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, ये सब कुछ वेरीफाइड है। ठीक है, और इसका तो पूरा एक प्रॉपर ERP इंटीग्रेटेड है। अगर किसी बंदे ने, जैसे आपने पेटीएम पे देखा होगा कि आप पेटीएम में अगर KYC कंप्लायंस नहीं हो तो आप एक सर्टेन अमाउंट ही फैच कर सकते हो। सेम उसी मैनर में जैसे ही आपके पास रिक्वेस्ट आएगी तो आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन अगर आपकी KYC कंप्लीट नहीं है तो इन दैट केस यू कैन शेयर द वीडियो बट पेमेंट वोंट कम टू यू, क्योंकि आपका KYC कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इस तरह से ऑटोमेटेड पेमेंट्स है। किसी ने जैसे ही परचेज किया वीडियो, आपने जो बनाया वीडियो किसी ने परचेज किया, सो यू विल बी पेड ऑटोमेटिकली। वो एक पूरा एक प्रॉपर इकोसिस्टम है, पूरा गेटवेज वगैरह सारे, एवरीथिंग इज इन प्लेस। और आप को जो मल्टीपल टाइप के जो गेटवेज हैं उनके कार्ड्स वगैरह जो है वो सभी के थ्रू आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। फिर है वर्नाकुलर सपोर्ट। हमने इसको अभी हम लोग सब मेजर लैंग्वेजेस में इस ऐप को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। टिल नाउ, एज ऑफ नाउ, we have English, Hindi and Gujarati options available. आपको जब फर्स्ट स्क्रीन, जब आप अपने आप को ऑनबोर्ड करते हो एज ए वी जर्नो, तो आपको वहां पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। लेटर ऑन भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपका जो एक लोकल कंटेंट है, जैसे आपका जो रिक्वेस्ट आई वो भी लोकल लैंग्वेज में रिक्वेस्ट आ रही है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। इवन आप यहाँ पे इसमें हमने ये सिस्टम दिया है कि आप उस बंदे को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली और आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं कि सब इस पर्टिकुलर एंगल से आपको ये वीडियो शूट करना है, सो दैट विल बी यूजफुल फॉर मी। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो देयर इन प्लेस इन द मोबाइल ऐप, इन द होल इकोसिस्टम। ठीक है, उसके अलावा क्वालिटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हम मिनिमम एक क्वालिटी जो है वो लेना चाहते हैं। सो दिस इज पेटेंट पेंडिंग कैमरा शेक मॉड्यूल, जो कि आपको इंटीमेट करता है, और अगर आप 3 वार्निंग्स के बाद में वीडियो शूट करते रहे कैमरे को शेक करते हुए, सो द ऐप विल ऑटोमेटिकली क्लोज। ठीक है,
ये अभी हमने पेटेंट के लिए अप्लाई कर रखा है। वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो एक पर्टिकुलर मिनिमम क्वालिटी का हम चाहते हैं, इसके लिए हम पेटेंट का अप्लाई करेंगे। एंड देन देयर विल बी डायनेमिक रेटिंग ऑफ ईच कंट्रीब्यूटर, तो आपको पता लग जाएगा कि ठीक है 5 स्टार रेटिंग का बंदा आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा है। ये कुछ उसके स्क्रीन हैं जहां पे आप शुरू में ऑनबोर्ड होते हैं, और ये आपके डैशबोर्ड की स्क्रीन हैं। किस तरह से आप कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन चूज कर सकते हैं, आपको कोई पर्टिकुलर एड्रेस पता है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपका जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, सो दैट इज अ मार्केट प्लेस, जिसमें कि हम लोगों ने टैग्स वगैरह भी दिए हैं आपको। आप कंटेंट को अपने हिसाब से किसी भी तरह से फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो आपके लिए कंटेंट चूज करना बड़ा इजी है। सम ऑफ द थिंग्स विच आर इन प्लेस ऑल्सो, कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपके पास में हमेशा से आप नोटिफाई रहेंगे कि आपने जैसे मान लीजिए 3 पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज किए कि कोई पॉलिटिकल न्यूज हो तो वो न्यूज के लिए मेरे पास में इंटीमेशन आए, कोई मीडिया से रिलेटेड न्यूज हो तो मेरे पास में इंटीमेशन आए। सो दैट काइंड ऑफ सेग्रीगेटेड मटेरियल यू विल बी गेटिंग इन दिस मार्केट प्लेस। ये हमारे फ्यूचर रोड मैप है, जहाँ पे हम इसको किस तरह से 5G के साथ में, मतलब अल्टीमेटली 5G के साथ में हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो 2 वे कम्युनिकेशन है, अभी ये सिर्फ 1 वे इसलिए है कि आपने जैसे ही आपने कुछ वीडियो की रिक्वेस्ट की और वो वीडियो आपके पास में आ रहा है, लेटर ऑन हम लाइव स्ट्रीमिंग वाला पार्ट भी जो है ना, दैट वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इन दिस सिस्टम, ठीक है। दिस इज द टीम, दिस इज द मेजर टीम। आई हैव टोल्ड यू प्रणव भार्गव इज CEO एंड co-founder, and this is me. I'm a director in the company. Neeraj is my partner. Anil is the person who is presently with Microsoft Singapore, और वो भी इसमें है, और संजय व्यास is Chief Technology Officer. मुझे इसमें वापस से ये चेंज करना पड़ेगा। मैं वापस से कंटिन्यू करता हूँ उसी पर्टिकुलर स्लाइड से जहां से हम लोग देख रहे थे। अब इसमें एक पर्टिकुलर चीज है कि जैसे आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, आप कोई भी एंटरप्रेन्योरियल विजन लेके चलते हैं, तो उसमें कहीं ना कुछ मिस्टेक्स रहती हैं, और वो मिस्टेक्स जो हैं वो दे विल बी हेल्पिंग यू ग्रो फर्दर, और उसमें आपको ये लगेगा कि हाँ आपके पास में बहुत सारा स्कोप है, आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट, जिस पार्ट पे मैं आपको मैंने शुरू से कहा था कि आइडिया वैलिडेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या होता है कि ना आप एक आइडिया लेके जाते हैं, जैसे हम लोग गए हर्ष चौधरी के पास में, एक न्यूज़पेपर, एस्टेब्लिश न्यूज़पेपर के पास में, कि भाई ये हमारे पास में आइडिया है और इस तरह से आप भी हमारे साथ में आओ, इसको वैलिडेट करते हैं आपके साथ में। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि भाई ये पॉइंट्स ऐसे ऐसे हैं। पर क्या होता है कि आप एक माइंड सेट के साथ में जाते हो, आपके पास कुछ आइडिया होता है, आपको लगता है कि आपका आइडिया सबसे बेटर है, ये काम करेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये फेल हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वहां पे आप उस चीज को डिच कर देते हो कि भाई नहीं, मैं आइडिया वैलिडेट नहीं करूंगा। सो द सेम थिंग हैज हैपेंड विद अस ऑल्सो, हमारे साथ में ये चीज हो चुकी है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है, आइडिया वैलिडेशन वाला जो पार्ट है ये आपको करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रोजेक्ट की डायरेक्शन, आपके प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा चेंज करता है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये चेंज कर सकता है। एंड आई थिंक एवरी एंटरप्रेन्योर शुड वैलिडेट द आइडिया, और उनको ये होना चाहिए कि भाई हाँ, मैं इसको जब तक वैलिडेट नहीं करवाऊंगा 1, 2 या 3 ऐसे लोगों से कि जो इस फील्ड में बहुत ज्यादा पुराने हैं या जिनको एक सर्टेन चीज की समझ है, जब तक वैलिडेट नहीं करवाऊंगा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं इस चीज पर।
So that was one of our mistake which we had done during development of VJED. फिर आपके पास में एक डेवलपमेंट टीम की सर्टेन मिस्टेक्स होती हैं कि जहाँ पे आपकी टीम क्या क्या मिस्टेक्स कमिट कर सकती है. अगर आप लोग कोडिंग फील्ड से हैं तो आप समझ सकते हैं ये चीजें कि जहाँ पे एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी स्टार्टअप के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी वेंचर के लिए, कि आपके पास एक बहुत बड़ा आइडिया है लेकिन आपको एक गो टू द मार्केट का एक टारगेट अपने दिमाग में रखना पड़ेगा. आपके पास में आइडिया है कि जो 1 साल में कंप्लीट हो सकता है. अब 1 साल अगर कंप्लीट होने में लगेंगे तो हो सकता है कि उससे पहले वो आइडिया कोई ना कोई और मार्केट में लेके आ सकता है. तो आपके पास अगर गो टू मार्केट की सिचुएशन क्लियर है तो आपके पास एक और चीज क्लियर होनी चाहिए, वो है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, दैट इज MVP. ठीक है, MVP आपने ये किया कि भाई ठीक है आपके पास अगर 10 फीचर्स हैं, 20 फीचर्स हैं, तो आपने 5 फीचर्स आपने कहा कि भाई मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, साथ साथ में मेरे पास में डेवलपमेंट और चलता रहेगा और उसके बाद में मैं और वर्जन्स लॉन्च करता रहूंगा. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स दैट जनरली डेव टीम और द को फाउंडर्स टीम हैव. वो क्या होता है कि आपको वैसे शुरू में एक MVP की आपको क्लैरिटी नहीं होती कि भाई आपको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या लेना है. आपको गो टू मार्केट का कोई टारगेट नहीं है, आपके पास आपने सोच नहीं रखा कि आपको मार्केट में कब जाना है तो ये सक्सेसफुल हुए. ठीक है, आपने कोई ऐसी टीम चूज कर ली जिसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो आप उसको कहीं हर तरह से मिस कर जाओगे. आपने कोई सर्टेन टाइमलाइन दी है, आपने वो फेलियर हो गया, आपका कोई डिलीवरी इश्यूज हैं तो वो आपकी चीजें मिस हो गई. उसके बाद में कुछ कॉमन चीजें हैं जैसे डेली स्टैंड अप मीटिंग और आपका जो टेक लीड की स्किल्स है वो आपकी प्रॉपर नहीं है, या आपने कोई अच्छे एम्प्लॉयज रिटेन नहीं किए. कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं डेवलपमेंट टीम में, पर ये कॉमन चीजें हैं. ये MVP का जो मैं पर्टिकुलर आपको बात कर रहा हूँ कि भाई आपके पास में इतने सारे आइडियाज होते हैं, आपको लगता है मैं ये भी इंप्लीमेंट कर दूं, ये भी इंप्लीमेंट कर दूं, ये भी इंप्लीमेंट कर दूं, उसके बाद में मैं एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाऊंगा जो कि जाने पे सुपर हिट हो जाएगा बिल्कुल एकदम. तो आप बिल्कुल गलत हैं अगर आपको लगता है कि आप इतना बड़ा विजन लेके चलते हैं जहां पे आपको लगता है कि आपकी डेवलपमेंट टाइम या गो टू द मार्केट जो है वो साल का, 1.5 साल का, 2 साल का है, तो आपको लगता है कि भाई ठीक है 1.5 साल बाद लॉन्च कर लेंगे. तो दैट इज वन ऑफ योर मेजर मिस्टेक्स. ठीक है, तो ये नॉन एडियरेंस टू MVP है जो कि मैं बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस करना चाहूंगा. फिर एक चीज आती है, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करनी चाहिए. आप मतलब क्यों, किस लिए, आप क्या चाह रहे हो, आप क्यों चाह रहे हो आपकी चीज. आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हो. तो इसके कुछ कुछ आपको मतलब कुछ चीजें हैं कि जो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाती है और विच कैन ड्राइव यू थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, इफ यू विश टू इनोवेट समथिंग, आपको लगता है कि यार दुनिया में कॉमन चीज सब कुछ अवेलेबल है, मैं कुछ नया इनोवेशन लेके आऊंगा, कुछ मतलब दुनिया हिला दूंगा वाली वो वाली बात. सो इफ यू विश टू इनोवेट समथिंग यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. दूसरी बात ये कि आपको लगता है कि यार मैं कहीं किसी के जॉब करूंगा तो मैं सच है मैं खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा और मैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा तो उसमें मैं लाखों लोगों को नौकरी दूंगा, मतलब हजारों लोगों को नौकरी दूंगा. फिर एक आपको इंडिपेंडेंट फीलिंग आती है इन सब चीजों से कि भाई ठीक है मैं अपना खुद का बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ. एक आपको पर्सनल ग्रोथ और अकम्पलिशमेंट की एक फीलिंग आती है. और एक सबसे बड़ा रीजन जो ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है. ये इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि आजकल यही चल रहा है इसलिए मैं भी एंटरप्रेन्योर बनूंगा, सब बन जाएंगे इसलिए मैं भी बनूंगा. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो आज की डेट में चल रहा है, विच इज परसिस्टेंट. उसके बाद में ये एक माइंड सेट है. तो मैंने एक स्लाइड में इसको डालने की कोशिश की, व्हाट इट टेक्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर. So you should have readiness for any particular product or project. ठीक है, आपको हमेशा अगर आप तैयार हो कि हाँ मेरे पास में कोई नई चीज आएगी तो मैं इसको गेज करूंगा. जैसे मैं इससे जुड़ा हुआ एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ कि मेरे पास में एक आइडिया आया बहुत पहले. हमारे एक पंजाब गवर्नमेंट में वन ऑफ माई क्लासमेट इज देयर, ही इज ए सिविल सर्वेंट. तो उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया और उन्होंने अपने MBA वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला कि साहब ये मैं यार इस तरह से एक ऐप डेवलप करना चाहता हूँ. तो इज एनीबडी देयर. MBA के ग्रुप में आपको टेक एंटरप्रेन्योर्स या ऐसे मिलने बड़े मुश्किल काम है, रादर बहुत रेयर एक टाइप की चीज है. एट दैट टाइम आई सेड यस, हम करेंगे. और फ्रेंकली स्पीकिंग आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट कि हाँ ये कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा. दैट वॉज अ प्रोजेक्ट विच वॉज डन सक्सेसफुली विद स्वच्छ भारत मिशन.
आपने अगर SBM का नाम सुना हो, स्वच्छ भारत मिशन अगर आपको हिट करता हो, तो देयर वाज वन ऐप व्हिच वाज डन बाय अस, दैट वाज स्वच्छ भारत टॉयलेट लोकेटर। इस ऐप से पहले इंडिया में टॉयलेट्स का कोई भी स्पेसिफिक डेटा नहीं था। आप आज की डेट में जैसे आप सर्च करते हैं गूगल पे जाके कि भाई नियर बाय रेस्टोरेंट, नियर बाय टॉयलेट्स, आपको मिल जाएंगे। उस पर्टिकुलर टाइम से पहले कोई भी ऐसा डेटा नहीं था, डेफिनेटली डेटा नहीं था कि जो आपको एक नियर बाय टॉयलेट अलग अलग क्राइटेरिया पे, अलग अलग पैरामीटर्स पे सेट करके दिखा सके। सो दैट वाज वन प्रोजेक्ट which went to us just because of readiness. I said okay, we are available. तो मेरा पार्टनर ने मेरे से कहा कि भाई अवेलेबल तो ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे? ऐसे लोग यार ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं। हमने सोचा, हमने कुछ डेवलपर्स हायर किए जो उस पर्टिकुलर फील्ड में पहले से काम कर चुके थे या जिनको थोड़ा बहुत आइडिया था, और हमने 2 एप्स डिजाइन की उस स्वच्छ भारत टॉयलेट लोकेटर के लिए। उसमें ये एक तो सिंप्लीफाइड यूजर ऐप थी, जहां पे ये था कि भाई आपका जो यूजर है वो अगर कोई पर्टिकुलर टॉयलेट सर्च कर सकता है। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, अब मेरे को पता नहीं चल पा रहा कि भाई मेरे को टॉयलेट यूज करना है, लेकिन मैं जानता नहीं कि कहाँ पे नियर बाई टॉयलेट है, तो मेरे को स्क्रीन पे सिंप्लीफाइड वे में वो 2 चीज दिखाता था, जेंडर, मेल और फीमेल। आपने चूज किया, चूज करते ही वो आपको नियर बाई टॉयलेट्स की लिस्टिंग पूरी दिखा देता था कि ये नियर बाई टॉयलेट्स है। आपने किसी को पर्टिकुलर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपको वहां तक का पाथ दिखा देता था। इट वॉज सो वेरी सिंपल, एकदम सिंपल कंसेप्ट था, जिसके लिए दैट पर्टिकुलर IAS कपल गॉट द अवार्ड। ठीक है, हमारे लिए इसमें प्लस पॉइंट क्या था? वी वर द डेवलपर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज वी वर रेडी टू टेक दिस, टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, दूसरा कन्विक्शन है आपको। आप अगर कन्विक्शन है तो आप ये चीज कर सकते हैं कि भी आप उस चीज को कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं यार ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो आपको लगता है ठीक है यार छोड़ो, देखते हैं, बाद में सोचते हैं। ठीक है, तो आपका पास में एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, मैं ये चीज करना चाहता हूँ। ठीक है, थर्ड है एनरोलमेंट टू द आइडिया। अभी मैं एक बहुत अच्छी एक वीडियो सीरीज देख रहा था जिसमें एनरोलमेंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया हुआ था। एनरोलमेंट बेसिकली क्या है कि अगर जैसे इसी पर्टिकुलर वी जर्नो की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो वी जर्नो में वी वर वेरी मच एनरोल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। उसमें ये था कि भाई ठीक है, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, हम लोग इसमें सिर्फ एक डेवलपर की तरह इसमें अटैच होना चाहते थे। देन एक डिस्कशन हुआ कि भाई ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट वर्क करेगा तो व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन दिस। हमने कहा ठीक है, हम बिकॉज वी वर सोल्ड टू दैट पर्टिकुलर आइडिया, हमको लग रहा था कि हाँ ये आइडिया बिल्कुल सही है, ये काम करेगा, और इसलिए हम लोगों ने इसमें अटैच होना चाहा, और हम वी वर सोल्ड टू इट, दैट मीन्स वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, एनरोलमेंट जनरली आपको आपके कस्टमर के लिए यूज करना चाहिए, जहां पे अगर आपने कोई आइडिया एक छोटे ग्रुप को दिखाया, एक छोटे ग्रुप को बताया, और अगर वो उससे कन्विंस्ड है, और वो इतने कन्विंस्ड है कि वो आपको 10 तो आइडियाज दे खुद कि भाई हाँ सर इसमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, साथ में वो 10 लोगों को और बताएं कि भाई ये एक मैंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखा था एंड दैट वाज रियली गुड। सो दे विल बी योर प्रमोटर विदाउट पेइंग एनीथिंग। आप उनको कुछ पे नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आपके प्रमोटर है। So that kind of enrollment should be there for your particular product to be succeed in the market. ये चीज इस तरह से वर्क करती है एनरोलमेंट। फिर एक है नेवर से डाई स्पिरिट। ठीक है, ये एक वॉरियर माइंडसेट है। मैंने अभी रिसेंटली मेरे को किसी ने बताया कि वो एक पर्टिकुलर एक्सपाइजेड पर्सन है, वो आपके लिंक्डइन पे कनेक्टेड है, और वो 3rd एंटरप्रेन्योरियल वेंचर जो है वो करने जा रहा है। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसका एक वो देखा, प्रोफाइल देखा, मैंने कहा क्या है, तो उसने क्लियरली अपने टाइटल लिखा था 1 फेल्ड वेंचर एंड 2nd एग्जिट ड्यू टू द पीयर्स एंड दिस इज माय 3rd वेंचर। तो ये आपकी अगर माइंडसेट है, अगर आपको लगता है कि अगर आप में एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए ये सब कुछ चीजें हैं, तो ही आपको इस चीज में जाना चाहिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये वर्ड बड़ा हॉट वर्ड है कि हाँ ठीक है आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, पर अगर अपन इंडिया में देखें तो हम लोगों के पास में कोई प्रॉपर इकोसिस्टम या सब कुछ चीजें जो है वो इतनी ज्यादा इन प्लेस नहीं है। अभी रिसेंटली मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के पास बैठा था, उनके पास कुछ आइडिया है कि भाई आपने एस्टोनिया मॉडल का अगर नाम सुना हो, तो आपको एस्टोनिया मॉडल जो है वो यूज करके अपने यहाँ पे एक इंडिया के लिए मॉडल डेवलप करना चाहिए। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई ठीक है, एस्टोनिया मॉडल तो बहुत परफेक्ट और वर्केबल है, लेकिन शायद हम उसको अगर इंडिया में लॉन्च करेंगे तो शायद वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं सकता। तो यहाँ पे कुछ चीजें आने में टाइम लगेगा,
एस्टोनिया मॉडल में एक बहुत सिंपल सी चीज है कि वहां पे जैसे ही आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के 5 साल तक वो आपसे कोई भी टैक्स वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं करते। ठीक है, उस तरह का मॉडल अगर अपने यहाँ पे हो तो नो डाउट अपने यहाँ पे भी अब यहाँ पे धीरे धीरे काफी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनने लग गए हैं, क्योंकि फंडिंग वगैरह अवेलेबल है। अभी रिसेंटली हालांकि देयर इज अ स्लो डाउन इन द मार्केट, इन द स्टार्टअप मार्केट, लेकिन आपको फंडिंग वगैरह जो है वो मार्केट में खूब मिलने लग गई है, इजीली मिलने लग गई है। उसके अलावा हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है दे हैव स्टार्टेड देयर ओन इंक्यूबेशन सेल्स। इवन योर कॉलेज माइट बी हैविंग सम इंक्यूबेशन सेल। हर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मैंडेटरी है और हर यूनिवर्सिटी के लिए मेरे ख्याल से ये मैंडेटरी है कि अपना एक इंक्यूबेशन सेल रखें जहां पे वो इस तरह के टैलेंट को नर्चर कर सके। ठीक है, ये चीजें कुछ चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के मामले में मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। और ये जो लास्ट स्लाइड, जैसे मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड है कि जहां पे आपकी अगर वॉरियर माइंडसेट नहीं है, अगर आपकी नेवर से डाई स्पिरिट नहीं है, अगर आपने एक वेंचर फेलियर के बाद में अगर आप नेक्स्ट वेंचर के लिए आप घबराते हो, आप डरते हो ना, तो मेरे ख्याल से आपको स्टार्टअप के लिए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। आप ये मानो कि भाई ये तो दुख तो आएंगे, ये तो चलेगा, साथ में चलता रहेगा, बट समटाइम्स यू आर वेरी मच कंफ्यूज। समटाइम्स अगर आपके से अभी क्या होता है कि जनरली आप कई बार कई अच्छी स्टोरी सुनते हैं कि भाई उसको इतनी फंडिंग मिली, उसको इतनी फंडिंग मिली, एंड यू आर वेरी मच एनर्जेटिक कि हाँ ठीक है, अगर इन सबको फंडिंग मिल रही है तो मेरे को भी फंडिंग मिल सकती है। ठीक है, मैं भी एक अपना एक सेटअप कर सकता हूँ। पर अगर आप ये समझिए कि जो जिसने आपके उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो एक सर्टेन इक्विटी, सर्टेन स्टेक आपके बिजनेस से लेगा, उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरे को तो इससे कुछ ना कुछ लेना है, कुछ ना कुछ अर्न करना है, इसलिए उसने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। इन वी जर्नो वी वर सो मच कन्विंस्ड विद आवर प्रोडक्ट कि जहां पे हम लोगों ने शुरू से सिर्फ खुद का पैसा ही इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। वी आर 4 people, वी हैव इन्वेस्टेड आवर ओन हार्ड अर्न मनी जस्ट बिकॉज वी आर सोल्ड टू द आइडिया कि हाँ ये वर्क करेगा। उसके बाद में एक सेकंड फेज में हमने जो फंडिंग ली उसमें हमारे पास में फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले जो लोग हैं वो हैं, और दे वर कन्विंस्ड विद आवर आइडिया कि हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया है और करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कुछ फंडिंग की है। अब ये थर्ड फंडिंग के लिए अगर हम प्रिपेयर्ड है, अगर हमको लगता है कि हम 2 साल के लिए अगर आगे काम करना चाहते हैं, तो भी हम इस तरह से चूज करेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइल्यूट नहीं हो, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डाइल्यूट नहीं हो। अदरवाइज एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा जो दिक्कत है वो ये आती है कि जैसे ही किसी ने आपके उसमें पैसा डाला, डालते ही वो आपको कंट्रोल करने लग जाता है, वो आपके सिस्टम को, आपके थॉट प्रोसेस को, कि भाई आप कहते हो कि नहीं ये करना चाहिए, वो कहता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। इस तरह की मूवी थी एक, स्टार्टअप नहीं, और उसका नाम था अप स्टार्ट। यू माइट हैव सीन दैट मूवी। उसमें ये था कि भाई ठीक है, 4 बंदे जो है वो साथ में मिलकर अपना एक वेंचर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें से एक बंदा पहले अलग हो जाता है कुछ कुछ क्राइसिस, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। देन लेटर ऑन वो सोचते हैं कि ठीक है हम कोई अच्छा इन्वेस्टर ढूंढ लेते हैं। उनको ध्यान आता है कि हाँ ठीक है, एयरपोर्ट पे वो एक बंदा मिला था जो इंटरेस्टेड था पैसे अपने डालने में, और वो उसको ढूंढ के और उससे कहते हैं कि ठीक है आप इन्वेस्टमेंट कर दो। वो जैसे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कंट्रोल करने लग जाता है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत बड़ा जो ये प्रॉब्लम है वो ये भी है कि भाई अगर आप फंडिंग के लिए जाते हो तो ये दिक्कत, और अगर आप फंडिंग के लिए नहीं जाते हो तो उस केस में आपके पास में यू शुड हैव मनी जो आप जिसपे आप वो काम कर सके। अभी भी जैसे जिस 2-3 एक अभी रिसेंटली हमने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, ये प्रोजेक्ट्स जो है वो IIT IIM उनके टीम जो है वो उसमें फंडिंग कर रही है, वो उनके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो देयर। इकोसिस्टम हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, लेकिन आपको वो एक माइंडसेट जो है वो रखना पड़ेगा, आपको एक वेटिंग पीरियड या जेस्टेशन पीरियड रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से निकलते सीधे एक जॉब में जाते हैं तो उस पर्टिकुलर जॉब में आपको फ्रॉम द डे वन आपकी सैलरी स्टार्ट है। ठीक है, और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो उसके अपने लूप होल्स हैं, उसके अपने लेक्यूना हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ जी सकते हैं, अगर आप उसके साथ काम कर सकते हैं तो यू शुड गो फॉर इट। मैंने मेरी जो जर्नी शुरू से बताई तो आपने उसको देखा होगा, सो मेनी ऑफ यू कैन कोरिलेट विद दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्नी। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं कहाँ पे किसी स्कूल में, गाँव की स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा जो है, मैं आज की डेट में ये सारा काम कर रहा हूँ, और इसके पीछे देयर आर सो मेनी ड्राइविंग फोर्सेस, इसके पीछे खूब सारी चीजें थी। मतलब आई हैड सीन बैड डेज आल्सो। मैंने भी ये देखा है कि भाई आप बहुत बुरे दिन होते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप में। अभी जो जैसे हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे पास में प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट लेस हैं, या जो हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके लिए ऑलरेडी पेमेंट आ चुका है, आप डिस्पर्स कर चुके हैं, और आपके पास में नया कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो देयर।
ये रहता है, आपको लगता है कि यार आप जो अर्न कर रहे हो वो क्या आप एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए और बिजली के बिल के लिए अर्न कर रहे हो, तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, ठीक है, बट दीज थिंग्स हैपन्स। पर अगर मैं मेरी जर्नी के लिए सोचूं और मैं जब भी रिव्यू करता हूं अपने आप को कि भी मैं कहाँ था और मैं आज की डेट में कहाँ पहुंच गया, तो मुझे लगता है कि भाई मैं अगर 9th के पहले टेस्ट में फेल हो सकता हूँ और उसके बाद में मैं इंजीनियरिंग में एज ए टॉपर आई एंटर्ड इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, कि जहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं हाईएस्ट रैंकर था। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें आपके माइंड सेट पे डिपेंड करता है। और चूंकि आरकेडीएफ ने एक मोटिवेशनल वर्ड इसमें साथ में दिया है, सो अलोंग विद माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी आई हैव एडेड सम काइंड ऑफ मोटिवेटेड थिंग आल्सो। तो मेरे ख्याल से आप ये पाथ फॉलो कर सकते हैं अगर आप में ये सब कुछ चीजें। तो थोड़ा सा कुछ चीजें और आगे बढ़ते हैं। दो और चीजें हैं, वो ये हैं कि अभी हम आज की डेट में प्रेजेंटली कहाँ पे हैं। प्रेजेंटली वी हैव 2500 वी जर्नोज ऑन बोर्ड। हमारे पास में आज की डेट में जो वीडियो कंटेंट है दैट इज कमिंग फ्रॉम डीप इनसाइड ऑफ बिहार, यहाँ से भी हमारे पास कंटेंट आ रहा है, और हमारे पास में राजस्थान के इंटीरियर विलेजेस से भी कंटेंट आ रहा है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी विश टू क्रिएट। अभी हमको बहुत एक लंबा सफर तय करना है, एंड दैट इज वे फॉरवर्ड काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे हम लोग किसी भी एक सिंगल क्लिक पे हम पूरे इंडिया में कहीं से भी कंटेंट लाके दे सकें। विद दिस थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि भाई हम ये कोई इसको इंडिया में ही लॉन्च नहीं करना चाहते, वी वांट टू हैव ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। तो ये कंसेप्ट है, ये चलेगा, जिसने सबसे फर्स्ट टाइम मेरे एक फ्रेंड ने, जैसे आप आइडिया वैलिडेशन की बात करते हो, मैंने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, मैंने कहा यार इस तरह से एक आइडिया है, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि यार मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, मैं वो साड़ी का काम करता है, वो मतलब वो भी बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, क्या बता मेरे को बताओ क्या क्या आइडिया है। मैं कहा यार ये इस तरह से आइडिया है, तो यार इतना जबरदस्त आइडिया। और मुझे लगता है कि यार तुम नेक्स्ट वेकेशन पे ऐसा नहीं हो कि तुम फुकट में बैठे हो और मैं तुमको फोन करके वहां बोलूँ यार भाई यार प्लीज मेरे से बात कर लो। सो दीज थिंग्स हैपन, देयर आर एनकरेजमेंट्स आल्सो। तो एक हमने पीओसी जो है वो हमने एबीपी न्यूज के साथ में की फाइनली, विच वी वांटेड टू डू विद दैनिक नवज्योति जयपुर, और वो हमने एबीपी न्यूज के साथ में की। दैट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। अभी हमारे पास में वी हैव सो मेनी पीपल ऑन द प्लेट, और मिनिस्ट्रीज के साथ में बात चल रही है, तो दैट थिंग वी आर गोइंग टू डू। इसके बाद में आपको कुछ कुछ थोड़ी सी स्टार्टअप से रिलेटेड टर्म्स बताया, तो आपने सुनी होगी ये सारी टर्म्स आपके पास में आपके सामने स्क्रीन पे है। दैट इज एमवीपी, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, पीओसी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। और तीसरा एंजल इन्वेस्टर, जो कि विच आर नॉट सो एंजल, ये आपके आज के टाइम के मॉडर्न सेट है, आज के टाइम के आपको पैसे देने वाले लोग हैं। गो टू मार्केट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप। आपके पास में पहले से ये डिसाइड होना चाहिए कि आप 4 महीने बाद में, 6 महीने बाद में डाउन द लाइन आप मार्केट में जाना चाहते हैं। वी हैव वर्कड ऑन सो मेनी ऑफ द स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स, और अभी मैं रिसेंटली हम लोग फ्लीट मैनेजमेंट के एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे उन लोगों के पास में इतनी ज्यादा अच्छी क्लैरिटी है गो टू द मार्केट के लिए कि उन्होंने अपनी सर्टन एक टाइमलाइन बना रखी है कि इस टाइम हम डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं, इस टाइम हम गो टू मार्केट हो जाएंगे, यहाँ पे हम लोग इतना इतना मार्केट कैप्चर करेंगे, ऑलरेडी ये प्लेयर्स हैं। ये सब चीजें अगर आपके पास में हो, इतना सारा डेटा आपके पास में हो, सो यू आर वेरी मच रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग। ऐसे नहीं कि एक आइडिया यार चल अपने डेवलपमेंट करने के लिए चालू हो गए, ये नहीं, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर बूट स्ट्रैपिंग है, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास में जो आपका पैसा है वही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भाई आपने यंग एंटरप्रेन्योर्स तो खूब देखे होंगे, और हमारे जैसे 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स आपको बहुत कम मिलेंगे, बट द पीपल आर देयर। हमारे एज ग्रुप के लोग भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं। फिर पिच डेक जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, और एज वेल एज जो मैंने आपको वीजनों की दिखाई, दैट वाज द पिच डेक। ये कुछ डेफिनेशंस हैं विच आर थ्योरेटिकल डेफिनेशंस, जो कि थोड़ी बहुत मुझे कुछ कुछ डिफरेंट लगी यूजुअल डेफिनेशन से। तो ये सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि आप कुछ नया और कुछ डिफरेंट टाइप का बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। सेकंड ये है कि भाई आपको आप सोचो कि आपको रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, कोई फ्रेंचाइजी लॉन्च करनी है, ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस करना है जो कि मार्केट में है, तो ये आप समझो कि ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ठीक है। थर्ड ये है कि भाई ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर स्केलेबल बिकॉज इट इज मोर यूनिक एंड डिफरेंशिएटेड, ठीक है। और फिर उसके बाद में इनोवेशंस वाला एक पार्ट है, और लास्ट जो पार्ट है जो मैंने आपको बहुत डीपली डिस्क्राइब किया हुआ है, ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप ऑलवेज हैव ए ट्विस्ट एज ए बिजनेस मॉडल एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये मैंने एक अच्छा मुझे डायग्राम लगा तो मैंने इसको लिया है।
With this, I would like to end the presentation here. और इसमें कोई भी आपकी क्वेरीज हो, आपको लगता हो कि कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि आपको मुझसे पूछनी चाहिए, तो आई विल शेयर माय ईमेल आईडीज और यू कैन रीच मी ऑन लिंक्डइन. अगर आपको लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है, अगर आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, आपको लगता हो कि हाँ मेरे से इससे कनेक्ट होना चाहिए, लाइक वी हैव डन वन POC विद द जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज, उनका जो जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट है वहां से उनके साथ मैंने किया था और इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल. और अगर आपको लगता हो कि आपको वो बेंट ऑफ माइंड है, या आपको लगता हो कि यू आर वन ऑफ द डेवलपर्स हु कैन कंट्रीब्यूट इन दिस पर्टिकुलर जर्नी, तो आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट होइए, आप हमारे कंपनी के पेज को सर्च करिए वीजेनो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और आप वहां कनेक्ट होइए. वी वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर जर्नी. लगता आपको लगता है कि ठीक है मैं इनकी हेल्प ले सकता हूँ, हमने हमारे साथ में जो वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स है उसने ऑलरेडी 2 या 3 इस तरह के वेंचर्स को हेल्प किया है. वन ऑफ देम इज फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा, ATV के नाम से है, आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसको उसने सपोर्ट किया है. इस तरह से हम लोग भी वी आर रेडी टू सपोर्ट यू. इफ यू हैव सर्टेन आइडिया इन योर माइंड, यू कैन ऑलवेज email me or always you can connect me on LinkedIn, and we would be more than happy to help you out. Thanks again to RKDF and Bhabha University for inviting me for this prestigious impact lecture series, and thanks to all. Thank you so much, sir. Participants, if you are having any query, any doubts, you can feel free to ask to Rajiv sir, please. Participants, I think हेलो सर, नमस्कार सर, राजीव सर, डॉक्टर अशोक झाला ही है. Yes sir, नमस्कार. हाँ सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे अगर हमारे यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे वीजर्नो टीम में अगर आपके इसमें जुड़ना चाहते हैं तो उनको शुरू में क्या करना रहेगा? बेसिक सर बहुत सिंपल है, मैं तो सिंप्लीफाइड वे में ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे जो ईमेल एड्रेसेस जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिए हैं, आई विल बी शेयरिंग इट विद यू एज वेल, और आप उनसे कनेक्ट, उस पर आप अपनी जो एक ब्रीफ एक इंफॉर्मेशन या ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का एक आप सेंड कर दें, तो आवर टीम विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट देम बैक, या फिर वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें, हमारी टीम में से कोई ना कोई उनसे बात करेगा. एंड डेफिनेटली मतलब इट विल बी मोर देन हैप्पी मोमेंट फॉर अस एज वेल कि जहां से हम इस तरह से कनेक्टेड हैं वो लोग हमारी टीम में आना चाहें. जी सर, थैंक यू वेरी मच. anyone else? Okay, so I want to extend my sincere thanks to our today's eminent speaker, Mr. Rajiv Mathew sir. Your deep and intellectual way of imparting knowledge really made our lecture series a very successful. That is Impact Lecture Series 4.0, organized in RKDF College of Engineering, Bhopal. Thank you so much, sir. Thank you so much for your presence. Thanks, ma'am. I want to express my thank you to Dr. Namish Mehta sir, Principal, RKDF College of Engineering, Bhopal, for your support and encouragement, sir. I also want to thank Dr. Ashok Jhala sir, Dean, Faculty of Engineering, RKDF College of Engineering, for organizing such a knowledgeable and impactful series, which is being organized by IIC, Institute of Innovation Council. Thank you, sir. I also want to thank you, all the participants, all the students. Without your presence, without your support, I don't think this impact series can be made successful. So thank you, all of you. Thank you so much.